بہترین سننے کے چینل نور قادریہ کو سبسکرائب کریں. کوئی انشاءاللہ کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے نہیں جائے گا کہ وہ شہزادہ آپ کے یہاں موجود ہے جس کے گھر کا صدقہ لینے کے لیے بریلی سے دنیا سنیت کا امام چل کر کے بلگرام معلیٰ جاتا ہے. کسی معمولی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کسی معمولی کی بات نہیں. دنیا سنیت کا امام مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بریلی شریف سے بلگرام معلیٰ جاتے ہیں صدقہ پنجتن لینے کے لیے، صدقہ رسول لینے کے لیے. اور کہاں جاتے ہیں؟ دادا کی بارگاہ ہے، گھر انہی کا ہے. اور جا کر کے صرف جاتے ہی نہیں ہیں، شہر میں گھسنے سے پہلے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں تو بورڈ لگا ہوتا ہے نا، گورنمنٹ کی طرف سے تختی لگا دی جاتی ہے کہ اب اتنے کلومیٹر کے بعد یہ شہر آنے والا ہے. یا جب داخل ہونے والے ہوتے ہیں تو شہر کے قریب ہی ایک بورڈ لگا ہوتا ہے. جب اعلیٰ حضرت بلگرام معلیٰ پہنچے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا، خبر ہوئی کہ بلگرام شریف اب آ گیا ہے، بلگرام کی سرحد میں ہم داخل ہو گئے ہیں، الحمدللہ. بریلی کے امام عام لوگوں کی طرح نہیں جاتے ہیں، بلکہ اپنی جوتیوں کو اپنے پیروں سے نکال لیتے ہیں اور پھر ننگے پیر جاتے ہیں میر صاحب کی بارگاہ میں. جوتیاں نکال کر کے ننگے پیر کہاں جاتے ہیں؟ سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی قدس الروح السامی کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور جانے کے بعد، حاضری دینے کے بعد، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ یوں تو اعلیٰ حضرت بہت ساری جگہوں پر گئے، بہت اور کئی خانقاہوں میں گئے ہیں، مگر بلگرام معلیٰ میں جانے کا انداز کچھ الگ ہے، طریقہ کچھ الگ ہے. گئے، چلے آئے. ایسا ثبوت اگر تاریخ میں رہا تو نوٹ کر دیا گیا، مگر مجدد دین و ملت جب بلگرام گئے تو ایسا ثبوت چھوڑ کر کے آئے ہیں، ایسا لکھ کر کے آئے ہیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی قسم خدا کی بلگرام معلیٰ کو اس کلام سے پہچانا جاتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلگرام تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کلام سے اور اعلیٰ حضرت کو اس کلام کا مکمل فیضان ملتا رہے گا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام، جنت ہے نام. عبد واحد کے سبب. میں آپ کو اور تھوڑا قریب کر دوں، پھر اور آپ کو اور مزہ آئے گا. اعلیٰ حضرت سے سب محبت کرتے ہیں، بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اعلیٰ حضرت سے محبت ہے نا سب کو؟ تو اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے بھی محبت ہوگی. اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں مہرارا شریف میں. کہاں ہیں؟ مہرارا شریف میں. اور جو اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں نا، انہی کے دادا کا نام ہے میر عبد الواحد بلگرامی، انہی کے دادا کا نام ہے. جی. مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں جو پروڈکشن ہے وہ کہیں اور کا نہیں ہے، وہ بلگرام کا مہرارا کے ذریعے ہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے بلگرام کیا ہے؟ وہ بلگرام معلیٰ ہے. اور عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت نے جب کلام لکھا، حضرت علامہ مفتی توفیق صاحب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آسماں اینک لگا کر، آسماں اینک لگا کر مہر و ماہ کی دیکھ لے، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام بلگرام، جلوہ انوار حق ہے صبح و شام بلگرام. اور کیا فرماتے ہیں؟ جنتی کھانا اگر کسی کو کھانا ہو تو 19 20 21 ربیع النور شریف میں، کتنی تاریخ کو؟ 19 20 21 ربیع النور شریف کو، 12ویں شریف کے مہینے میں 19 تاریخ
20 तारीख और 21 तारीख को बिलगिरा में मोहल्ला में जन्नती खाना बंटता है। बेशक। जन्नती खाना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्या बात है। स्टेज पर बैठे ये उलमा नहीं कह रहे हैं, सिर्फ कह कौन रहा है? आला हजरत कह रहे हैं। ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, बिलगिरा में मोहल्ला में है, मीर साहब की बारगाह का लंगर का जब खाना खाया, जब लंगर खाया तो क्या फरमाते हैं? रोज़े उर्स आवार गाने दस्त गुर्बत के लिए, सुभान मन न सलवा है मगर खुब्जो इदामे बिलगिराम, अल्लाह। मन न सलवा है मगर खुब्जो इदामे। हमारे दरमियान ऐसी बबरकत अजीम शख्सियत तशरीफ फरमा है। जी माशाअल्लाह। अब मुझे आप बताइए, आप जाएंगे यहाँ से? नहीं। कैसे जा सकते हैं? अरे यही वो लोग तो हैं, यही वो घराना तो है। यकीनी तौर पर अजीदान मिल्लत इस्लामिया जिनका रिश्ता अहले बैत अतहार से है, सैयदा फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ी अल्लाह अन्हा से है, मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा से है, और जिनका इनसे रिश्ता होता है और जो इनके दामन से फिर जुड़ जाता है, उनका भी रिश्ता इनसे हो जाता है। ये वो अजीम शख्सियात है। हाँ, तौफीक साहब अभी बहुत उम्दा खिताब फरमा रहे थे, और पीरों के हवाले से भी एक गुफ्तगू आपने एक जुमला फरमाया था, और फरमाया था माहौल खराब और बेड़ा गर्क आजकल के जाहिल पीरों ने किया है। और मैं कहूं, उन जाहिल पीरों के ऊपर और उनके दरवाजों पर जो ताला लगाया है, वो कसम खुदा की सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी की किताब सबे सनाबिल शरीफ ने लगाया है। इसलिए शरीयत और तरीकत की बात चल रही थी, मुफ्ती साहब ने शरीयत और तरीकत को समझाया, समझ में आया आपको? सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरीयत और तरीकत के हवाले से क्या फरमाते हैं। इसलिए तरीकत का नाम लेकर के आज हमें और आपको गुमराह किया जाता है। मैंने इसलिए हमें और आपको कह दिया ताकि किसी को बुरा ना लगे, वरना अहले इल्म हजरात तो उनके जाल में आते ही नहीं है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह एक मौके पर एक जगह मैं खुद गया, पीर साहब आए हुए थे, उनके मुरीदीन ने बुला रखा था, मैं भी पहुंचा। तो क्योंकि वो एहतमाम उनका अलग ही तरह का होता है कि उल्टे चलिए और पीछे चलिए और ऐसे चलिए। उसके बाद में जहाँ पीर साहब बैठे हुए थे तख्त पर, तो मैं गया और मैं उनके तख्त पर जब बैठ गया, तो क्योंकि गाँव में सरहाना और पैताना भी चलता है कि आप सरहाने कैसे बैठ गए, आपको तो इधर बैठना चाहिए था। तो मैंने कहा क्यों, मुझे बैठने का हक हासिल नहीं है यहाँ पर? बोले नहीं नहीं नहीं, हजरत पीर साहब बैठे, आपको दिख नहीं रहा है? तो वो पीर साहब को अंगूठी पहने हुए थे। बरजस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिदी हूँ और वाहिदी गुलाम हूँ। ताहिर मिल्लत की जिंदगी को मैंने बड़ा करीब से देखा है। मैंने देखा है हुजूर ताहिर मिल्लत, हुजूर सुहेल मिल्लत के वालिद गिरामी, अगर उनसे कोई मुसाफा करता और उसके हाथ में तो अंगूठी होती या कलावा होता, फौरन मुसाफा करते ही उससे कह देते दो अंगूठी पहनना जायज नहीं है, एक अंगूठी पहनना जायज है, एक निकाल दो अभी। क्या बात है माशाअल्लाह। आपको ये परवाह न रहती कि कोई नाराज होगा या नहीं होगा, आप फरमाते शरीयत का हुक्म है अभी निकाल दो, और निकलवा देते। हुजूर ताहिर मिल्लत, मैंने करीब से हजरत की जिंदगी को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे शरफ हासिल है और मैं इस पे नाज भी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र भी है इस पर, इसलिए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए फख्र है कि हुजूर ताहिर मिल्लत और शहजादा ताहिर मिल्लत के सदक़े में जो इनाम और इकराम मुझे मिला है वो सिर्फ मैं जानता हूं। इसलिए हज़रात जब दो अंगूठी वो पहने हुए थे तो मैंने भी बर्दाश्त कहा। मैंने कहा तुम्हारे पीर साहब को अभी शरीयत ही नहीं मालूम है, तो ये पीर साहब कैसे हो गए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बिगड़ भी गए वो लोग। फिर मैंने पीर साहब से कहा, मैंने कहा आपको मालूम है कि शरीयत में
दो अंगूठी पहनना जायज है या नहीं है? वो खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा शरीयत कहती है एक अंगूठी एक नग की चांदी की 4.5 माशा की मर्द को पहनना जायज है, उसके अलावा जायज नहीं है। जब तुम्हें शरीयत मालूम नहीं है तुम पीर कैसे बन गए हो? पीर वो होता है जो शरीयत मुताहरा पर बाज़ाब्ता तौर पर अमल पैरा हो। सुभान अल्लाह। बगैर शरीयत के पीर नहीं पैर होता है, पीर नहीं पैर होता है। पीर वही होता है जो शरीयत वाला होता है। तो ये कह के कि तरीकत और है और शरीयत और है, हम तो तरीकत वाले हैं, मौलवी साहब लोग शरीयत वाले हैं। तो हुजूर सुहेल मिल्लत तशरीफ फरमा है, ये पहले आलिम हैं बाद में पीर बने हैं। सुभान क्या अल्लाह। बात। पहले आलिम हुए, उसके बाद ताजदारे बिलगिराम हुजूर ताहिरे मिल्लत ने अपना सब कुछ अता फरमा के अपना जाशन जानशीन बना करके अपना वारिस बना करके अपनी जगह पर बिठाल करके हमें और आपको ज़हन दिया है, पहले इल्म दीन हासिल करो उसके बाद तरीकत की बात है। पहले आलिम उसके बाद पीर। इसलिए मीर साहब अलैहि रहमान ने सबे सनाबिल में फरमाया तरीकत और शरीयत के हवाले से कि शरीयत सर के बाल हैं और तरीकत उसमें निकली हुई मांग है। समझ में आ रही है बात? शरीयत क्या है? सर के बाल, और तरीकत उसमें निकली हुई मांग। जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर गंजे के हाथ में कंगा दिया जाए और फिर मांग निकालने के लिए कहा जाए तो मांग निकलेगी या खून निकलेगा? मांग नहीं निकलेगी। तो इससे मालूम होता है कि जितने ज्यादा खूबसूरत बाल होंगे उतनी ही ज्यादा खूबसूरत मांग निकलेगी। तो जितनी ज्यादा मजबूत शरीयत होगी उतनी ही ज्यादा मजबूत तरीकत होगी। कसम खुदा की, सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म फज़ल और कमाल हासिल करके जब मकाम विलायत पर आते हैं तो दुनिया देखती है कि दुनिया गौसे आदम बहुत अच्छा माशा बगैर इल्म अमल के मुमकिन नहीं। तो इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, पीर वो होता है जो शरीयत वाला हो। इसलिए ये हाथ भी सबको नहीं दिया जाता है, सबके हाथ में हाथ नहीं दिया जाता है। गैरा गैरा नत्थू गैरा कोई भी आया, बेनमाजी आ गया, ढोंगी आ गया। सही बात तो ये है जो नमाजी ना हो वो पीर हो ही नहीं सकता। जी। उलमा की कदर करिए। इसलिए हाथ देना ये मामूली बात नहीं है। हाथ देने का मतलब होता है बिक जाना। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ ही तो नहीं दिया था, हाथ ही तो मांगा जा रहा था। इमाम हुसैन ने हाथ न दिया, बता दिया हाथ उसे दिया जाता है जो मुस्तफा की शरीयत वाला होता है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सुहेल मिल्लत उस वालिद गिरामी के बेटे, उस दादा के नवीरा और उस खानका के सज्जादा हैं जहां फैज लेने के लिए बरेली का इमाम खुद गया। और वो शहजादा ज़हे नसीब हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद कुआं प्यासों के पास आ गया है। ये खुश नसीबी है या नहीं है हमारी? बेशक। है या नहीं है? ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। तो अच्छा, इसी जिम्मे में एक बात कहूं मैं, आप नहीं चाहते कि वो फैजान जो आला हजरत ने बिलगिराम से लिया था आपको मिले? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो हजरात वो फैजान मिलेगा कैसे? आला हजरत ने रिश्ता अपना कैसे जोड़ा बिलगिराम से मालूम है? अपने आप को हवाले कर दिया बिलगिराम के शहजादों के, और फिर अपने आप को हवाले कर दिया और अपना हाथ उनके हाथ पर दे करके बिक गए। और जब बिलगिराम के शहजादों ने खरीद लिया तो दुनिया में आला हजरत बना दिया। मेरा जाती मशवरा है आप और इन उलमा का भी यही मशवरा है। आप फर्दन फर्दन अगर किसी से पूछेंगे, मौका गनीमत है कि हम और आप अपना हाथ
سہیل ملت کے ہاتھ میں دے کر کے اعلیٰ حضرت کی اس سنت کو زندہ کر دیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر و مرشد آل رسول کے ہاتھ پر ہاتھ دیا تھا، اور فیضان واحدی لے کر کے پوری دنیا میں آج اعلیٰ حضرت بن کر کے چمک۔ جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ تو حضرت سے بیعت ہو جائیں، اور جو مرید ہیں کسی اچھے پیر سے، شریعت والے پیر سے، عالم پیر سے، وہ پکڑ لیں، وہ طالب ہو جائیں تاکہ فیضان واحدی ان تک عام اور تام ہو جائے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے والے اور آگے آ جائیں۔